Hello guys, now we'll study the class 10th NCERT Contemporary India chapter 1 Resources and Development. Under the resources and development, we will see here the basic overview and what is the resources, what are the types of resources, how the development of resources has been taken place in India. So first paragraph, going to the first paragraph, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is a technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. So here basically what is the saying in the first paragraph कि basically जो resource होता है, हम resource किसको बोल सकते हैं. तो let's have the overlook. The things, everything which is available in an environment, okay, and which can be used to satisfy our needs, okay, technology accessible, feasible and culturally acceptable, that termed as known as resources. Got it? So basically resource as a thing विच इज़ प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है. टेक्नोलॉजी उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक के लिए फिजिबल हो, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम्स आए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो इस टर्म्स को हम रिसोर्सेज कह सकते हैं. ओके, नाउ सी हियर द interdependent relation between nature, technology and institution. How these three things are interdependent. See, physical environment means nature and human beings. See, human being cannot live their life without the dependence of the nature. जैसे हम देखते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें, जो हमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ और एसेंशियल चीज़ें हैं, वो हमें नेचर ही देता है. जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, फ्रेश एयर हो गया, ठीक है, एवरीथिंग. सो जो हमारी सर्वाइवल है, बिना हम एनवायरनमेंट के डिपेंड पे नहीं कर सकते. नाउ the next in technology. Okay, although the basic thing is provided by the nature, but to live our life comfortably, to develop ourselves, to innovate ourselves, we need a technology. We need to be dependent on the technology. Now the institution, see, without the institution, the physical nature and human technology cannot be used by the human beings. Take example कि अगर कोई रॉ मटेरियल है, उसे हम किसी चीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है. दैट मे बी फैक्ट्रीज, दैट मे बी इंडस्ट्री, दैट मे बी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग. नाउ moving to the next line, the process of transformation of the things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. What it's saying कि जो प्रोसेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन में, ये बेसिकली एक हमारे इन्वायरमेंट ने ही हमें दिया है. नाउ human beings interact with nature through the technology and create institution to accelerate their economic development. See, first of all, what happened? Take example of A. A is a human being. What he will do? He will go to the natures, okay, extract the things, ठीक है. उसके बाद क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा उस थिंग को, फिर उसको इंस्टीट्यूशन में लेके जाएगा, उसको टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करने की यूज़ करेगा. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है. Now, do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? They are not. Resources are functions of human activities. Human beings themselves are essential component of resources. ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी resources है, ठीक है, take example of a tree, okay, ठीक है, एक ट्री जो है वो क्या फ्री रिसोर्सेस है? आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को बहुत ईजिली कट कर देते हैं. उनको लगता है ये तो ऐसे ही उग गया था और इसे तो ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है, बट ये गलत है. रिसोर्सेज कभी भी फ्री नहीं होते हैं. अगर हम देखा जाए तो हम खुद भी एक रिसोर्सेस हैं, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी एक रिसोर्सेस ही है, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम सपोज टेक एग्जांपल, अभी आप स्टडी कर रहे हो, यू आर वाचिंग माय वीडियो, ओके, सो यू आर टेकिंग दिस नॉलेज, एंड जब इस नॉलेज से कुछ आउटकम्स आएंगे, दैट में बी द फिनेंशियल और द सोशल सर्विस, एनीथिंग, तो वो एक रिसोर्सेज जैसा ही वर्क करता है. तो आवर एक्टिविटीज़ all are as a resource. Human beings
they transform materials available in our environment into resources and use them. Basically, what does the human being do? They transfer the material which are available in our environment and make them into the resources. These resources can be classified in the following ways. Okay, the resources can be basically classified in the following ways. See, the first one is on the basis of origin, from where these resources are originated. That is the one way to classify the resources. For example, the resources can be origin for as a biotic or abiotic. Now, on the basis of exhaustibility, how the resources are easily exhaustible, non-exhaustible, like renewable and non-renewable. Okay. Now, the third one is on the basis of ownership, individual, community, national and international. Okay. So, third one is what is the how we can divide the resources. That is based on the three things: ownership, who owns that resources, who is the owner of that resources, like individual, people, community, national or international. Fourth one is on the basis of status development. Status development means how the people is, how the particular person is powerful. Got it? Now here we will see the move to the flow chart. Just watch. This is the resources. Okay, resources can be divided into two ways. One is a natural and another is the human made, or you can say the artificial one. Okay, the natural was is first category, renewable and non-renewable. Okay, that which was divided into on the basis of exhaustibility. Then renewals, under the renewals also there are the some resources which are the continuous. Okay, and they are flowing, means they are available in each and every moment. Next one is biological. Biological is like a natural vegetation and wildlife. So the nature on the basis of resources first categorize नेचुरल एंड ह्यूमन्स में. उसके बाद क्या हुआ कि नेचुरल्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ अ रिन्यूएबल एंड अनदर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल. अगेन रिन्यूएबल्स को हम कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल में डिवाइड कर सकते हैं. देन बायोलॉजिकल हम नेचुरल और वाइल्ड लाइफ में कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नॉन रिन्यूएबल को भी हम दो फॉर्म में कर सकते हैं. वन इज़ अ रिसाइक्लेबल, अनदर इज़ अ नॉन रिसाइक्लेबल. ठीक है. नाउ मूविंग टू द ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल. तो ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड इज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. गॉट इट? नाउ we will study here the types of resources thoroughly, like we will study here individually one by one. On the basis of origin, biotic resources, they we will start from the on the basis. ओके, तो हमने अभी तक चार बेसिस पे पढ़ा है कि चार बेस फॉर्म पे वो रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हाउ द रिसोर्सेज आर ओरिजिनेटेड. फर्स्ट वन इज़ अ बायोटिक रिसोर्सेज, सेकेंड इज़ अ एबायोटिक. ठीक है. दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हाफ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ईटीसी. सी जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिकली ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से. ठीक है. और इनकी जो लाइफ होती है, जैसे कि अगर हम इनकी सर्वाइवल की बात करें तो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, फिशरीज हो गया, लाइफ स्टॉक, ये सब क्या है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज है. हम कौन से रिसोर्सेज के अंदर आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज. नाउ मूविंग टू द एबायोटिक, ऑल those things which are composed of non-living things are called the abiotic resources. For example, rocks and metal. See, basically on the basis of origin there are two kinds of resources. One is a biotic and another is a abiotic. Just take the example, biotic means B. Okay, abiotic start from A. See, A is from non-living, okay, and B is from living one. Just try to remember the clue. Oh, got it? Now moving to the second categories, that is on the basis of exhaustibility. And under the basis of exhaustibility there are again two kinds. Resources are again divided into two categories. One is the renewable resources, another is the non-renewable resources. Now renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by the physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. See, renewable resources वो resources होते हैं which are renewed. Okay, they can renewed easily, they can produce by the use of physical, chemical and mechanical process. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सोलर एनर्जी, ओके, एंड टेक एग्जांपल ऑफ एयर. फॉर एग्जांपल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सोलर, विंड एनर्जी, ये सारे एग्जांपल किसके? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूस और फ्लो फॉर्म में. ठीक है. दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ही मतलब इसका फॉर्मेशन होना जल्दी नहीं हो सकता और इजी नहीं है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जल्दी होता है और इजी भी है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज के क्या हैं, तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नाउ सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद दिस यूज़। बोला जाता है कि अगर कुछ जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स हो गए, ठीक है, ये इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और जो दूसरे हो गए फॉसिल फ्यूल्स, वो उन्हें भी हम रिसाइकल कर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो अगर एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है। जैसे कोल हो गया, कोल को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ थर्ड, on the basis of ownership. Under the basis of ownership, the first one is individual resources. These are also owned privately by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. See what happened, there are some resources. Take example of land, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि कई लोग आपने देखा होगा कि ये हमारा लैंड है, ठीक है। what does it means? Land is a resources which is given by our environment, but when the people own that, okay, that resources become the comes under the ownership. So individual resources, suppose अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, सपोज आपका कोई घर है, दैट इज़ योर्स, मे बी वो गवर्नमेंट को अलॉट किया गया होगा, लेकिन वो अपने पेमेंट रेवेन्यू से या फिर उन्होंने पेमेंट करके वो सारी चीज़ों को ले लिया है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि विलेजेस में बहुत से पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड है और लैंड के वो ओनर्स हैं, बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लैंड नहीं है और वो लैंडलेस पीपल हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। अगर हम अर्बन पीपल की बात करते हैं तो अर्बन पीपल्स के पास घर होते हैं, ठीक है, हाउस होता है और प्रॉपर्टी होते हैं। प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, ponds, वाटर इन वेल्स etc आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। बोला जाता है कि अगर हम कुछ इंडिविजुअल पीपल की बात करें तो जैसे कि वो क्या करते हैं कि कुछ वहाँ पे हम जो अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांटेशन करते हैं, पैस्चर लैंड्स करते हैं, पॉन्ड्स करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये एग्जांपल है ओनरशिप बाय इंडिविजुअल की, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड, ठीक है, आपको एक लिस्ट रेडी करनी है जो कि आपके घर के द्वारा वो रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ अ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सी अब बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि कम्युनिटी की होती है, वो उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, कोई भी चीज़ पे एक इंसान का अधिकार नहीं होता है, उसको ओन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। There are resources which are accessible to all members of community: village commons, grazing grounds, burial grounds, village included among stock. For example, water is a compound of two gaseous, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि विलेज में ग्रेजिंग ग्राउंड्स ले लेते हैं, मतलब कि घास सब के लिए है, उसमें ये नहीं है कि किसी एक के लिए है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि दो गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज़ इट फॉर द पर्पस, हैंस इट कैन बी कंसिडर एज स्टॉक, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में चीज़ें आती हैं वो स्टॉक में आती हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमें ये आइडिया नहीं होता है कि हम स्टॉक को यूज़ कैसे कर सकते हैं, फिर स्टॉक की यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो स्टॉक के अंदर आता है। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ अ रिजर्व। Okay, reserve are the subset of a stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. So reserve एक सबसेट है स्टॉक का, और इसको हम मतलब कि
बिना टेक्निकल नॉलेज के इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये एक एज अ रिजर्व यूज़ होता है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब हमारे टाइम, मान लो कि आने वाले टाइम पे जब हमें बहुत सी शॉर्टेज पड़ेगी रिसोर्सेज की, उस टाइम पे हम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो रिवर नदी का पानी होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने के लिए, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू द लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अभी के टाइम में इसको सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट पे यूज़ करते हैं। Got it? Now, thus the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. जैसा कि एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमने रिवर का एग्जांपल लिया वैसे ही हम एग्जांपल देते हैं कि डैम्स का। जैसे डैम्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये हमारे लिए क्या है, एक रिजर्व है। देखो इतनी सारी डैम्स है, इतने सारे रिवर्स, इतने सारे पॉन्ड्स है, इतने सारे सीज हैं, सबका वाटर तो अभी हम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे आने वाले टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से हम चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उस रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी एक एग्जाम्पल है। नाउ, development of resources, got it? Till here we have studied about the types of the resources and the little explanation about the types of resources. तो बेसिकली हमने दो एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, पहला तो ओरिजिन पे पढ़ा है, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी एंड थर्ड वन इज ओनरशिप। हमने 3 रिसोर्सेज को पढ़ा है। सो वी विल हैव द क्विक रिविजन टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड। सो बेसिकली द चैप्टर रिफर्स कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज और उसके डेवलपमेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टडी की कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके अंतर्गत में हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा चीज़ जो नेचर्स में अवेलेबल होता है और हम उसको अपने यूज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फिजिबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी की कि जो रिसोर्सेज हैं उसको हम फिज़िकल नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। कोई भी रिसोर्सेज हमें जो नेचर से मिलता है उसको हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक इंस्टीट्यूशन से ले जाके टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? ये सारी चीज़ें देखी। नाउ उसके बाद हमने देखा कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली रिसोर्सेज को डिवाइड करने के लिए 4 मेन बेसिस होती हैं। पहला जो होता है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन में हमने देखा बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। उसके बाद वो एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कितने टाइम तक वो रह सकता है या नहीं रह सकता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड वन इज किसका है वो रिसोर्सेज आखिर में, तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा, ठीक है। देखो जो बेसिस में पढ़ा दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन, ठीक है। और जनरली आप ये फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हो। तो रिसोर्सेज नेचुरल और ह्यूमन मेड होते हैं। नेचुरल में 2 टाइप होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी 2 टाइप होता है, कंटिन्यूस और फ्लो और विंड। बायोलॉजिकल, देन बायोलॉजिकल में भी 2 होता है, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में 2 टाइप्स होते हैं, रिसाइकल, नॉन रिसाइकल, ठीक है। ह्यूमन मेड में होता है स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने जैसे कि ऑन द बेसिस में पढ़ा, तो इसमें क्या होता है कि बायोटिक मतलब जो चीज़ें ज़िंदा हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स, हम सारे लोग, ठीक है। एबायोटिक में जो चीज़ डेड है, नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने रिन्यूएबल पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज़ देखी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ईजिली रिन्यू किए जा सकते हैं, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे। नॉन रिन्यूएबल जो ईजिली रिन्यू नहीं किए जा सकते, उनको रिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल कोल, ये सारी चीज़ें। फिर ओनरशिप में हमने इंडिविजुअल पढ़ा, ठीक है, कम्युनिटी ओन पढ़ा। और कम्युनिटी ओन में हमने 2 चीज़ें समझी, एक तो स्टॉक क्या होता है, ओके, एंड दूसरा रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई और आपको क्लियरली चीज़ों का डिफरेंस समझ में आया है। सो वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट लेक्चर।